تو یہ تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ پرانا جو وہ رانا ثناء اللہ والا گلو بٹ جو ہیں سارے یہ لے آئے ہیں وہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سرکاری ملازمین ہیں چیف سیکرٹری سے لے کے آئی جی سے لے کے یہ ڈی سی یہ نوٹ کر لیں. اور میں نے کہا ہے سب کو کہ جس طرح یاسمین راشد کو اور میاں اظہر صاحب کے گھر حماد اظہر کے گھر گئے ہیں, محمد الرشید کے ساتھ کیا ہے, اور جو خواتین ہماری رہنما ہیں ان کے ساتھ کیا ہے, یہ کوئی ایسے رائے گاہ نہیں جائے گا. سارے ثبوت بھی اکٹھے کر لیے اور ایک ایک سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک ایک کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اور دراصل گھبراہٹ کیا ہے کہ اتنی مقبولیت جہاں عمران خان صاحب کال دیتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچ جاتے ہیں, اور جلسے ان کے دیکھ کے نا یہ دہل گئے ہیں, اور یہ بہانہ لگاتے ہیں بارش ہو گئی ہے جلسے میں. اکاڑے کیوں نہیں کیے گئے یہ دونوں بہن بھائی کیوں نہیں گئے اکاڑے جلسہ رکھ کے؟ جانا چاہیے تھا ان کو. پہلے انتظار کرتے رہے, انتظار کس کا کرتے رہے کہ چلو بارش ہی ہو جائے, وہ انہوں نے سنی گئی. اور اس کے بعد اور پھر یہ سارے عدالتوں میں کیسز ہیں اور رائپ ہو چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی جلد وہ فیصلے بھی آنے والے ہیں. اور جو سب سے بڑا ظلم کیا ہے انہوں نے, مال ٹاؤن میں ہماری ایک ایم پی اے ہیں 80 سال کی ایج ہے ان کی, اور راشدہ جو ہیں, تو وہاں انہوں نے جا کے تو جو اودم مچایا. اسی طرح گلبرگ میں علامہ اقبال کی جو بہو ہیں جسٹس ناصرہ جوید اقبال کے گھر کا گیٹ توڑ کر اندر داخل ہوئے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی؟ باپ بیٹا دونوں علامہ اقبال کے جو ہیں یہ شعر پڑھتے ہیں, شرم آنی چاہیے ان کو شعر پڑھنے کی. اور اسی طرح شہباز شریف, اور یہ ابھی تو دیکھیں یہ راشدہ کو انہوں نے جو مال ٹاؤن میں کیا ہے, ہراساں کی ہے بیچاری کو. وہ پہلے ہی 85 سال کی خاتون ہے ایم پی اے, اور ان کے چھوٹے چھوٹے وہاں ان کے بہو بیٹیاں سارا سب کو جا کے گراؤنڈ میں اکٹھا کر کے تو بڑے بنتے رہے ہیں وہ بلٹ اور دکھاتے رہے ہیں اس کو. اور یہ اصل میں یہ رپیٹ کر رہے ہیں کیونکہ مال ٹاؤن کے جو کیس ہیں سانیہ مال ٹاؤن میں ان کو سزا نہیں ہوئی بیوروکریسی کو. شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ یہ تو کیس ہی وہ ہیں مرڈر کیس کے سرگناہ ہیں, اور شہباز شریف اور حمزہ شریف نے جو بندے دیے تھے سب کو پتہ ہے. اور جو کمشنر لاہور ہے سب کو پتہ کہ یہ وہی آدمی ہے, اس وقت ڈی سی لاہور تھا جس نے سارا آرگنائز کیا تھا, اور اس وقت کمشنر کو بھی چیف سیکرٹری کو بھی. انشاءاللہ تعالیٰ یہ پکڑ پکڑ کے سزا ہوگی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جس کی حاملہ عورت کی بیٹی ساتھ کھڑی تھی اس کے منہ میں انہوں نے گولیاں ماری ہیں, تو وہ اسی طرح رائے گاہ جائے گی, اس کی جو چیخ ہے وہ 7ویں آسمان تک پہنچی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اب آپ دیکھیں گے آنکھوں کے سامنے ایک ایک ان کے خاندان کا بندہ ذلیل و خوار ہوگا, اور ان کو سمجھ نہیں لگے گی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ اپنے لیے پورا کیا ہے, یہ اپنے ہاتھ پاؤں کاٹے ہیں, اور ایک ایسی بری مثالیں انہوں نے قائم کی ہیں کہ یہ ٹریڈیشن قائم کر رہے ہیں جہاں ہم نے اسمبلی کے اندر لیجسلیشن کی اور ختم نبوت کے حوالے سے کام کیا, اسی اسمبلی میں انہوں نے توڑ پھوڑ کی. رانا مشہود نے اور جتنے یہ گنڈے تھے سارے نون لیگ کے, اور جو کچھ انہوں نے وہاں کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ایک ایک کا ان سے حساب لیا جائے گا, اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ خاص طور پہ پولیس کو اور ان کے لوگوں کو جنہوں نے کیا ہے یہ کیفر کردار تک انشاءاللہ پہنچائیں گے. یہ دیر ہو سکتی ہے, دیر نہیں ہو سکتا. اب آپ نے کوئی سوال؟ صاحب یہ بتائیں, آپ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں, 30 تاریخ کا اجلاس ہم نے بلایا ہوا ہے. کل رات تقریباً 2 درجن ایم پیز کے گھروں پہ ریڈ ہوئی ہے, ان کے دروازے توڑے گئے. اس موقع پر ایک تو آپ از خود کچھ لے سکتے ہیں نوٹس, یا ارکان اسمبلی کی طرف سے کوئی استحقاق کا آ گیا,
استحकाक के लिए कहा गया, तो मौजूदा IG को और इन लोगों को तलब किया गया? बिल्कुल हम तलब भी करेंगे, इजलास भी बुला रहे हैं, हम इजलास बुला रहे हैं। पहले 30 तारीख से पहले हाँ जी, पहले इजलास तो ऑन है ना। अच्छा ये बताइए कि इस वक्त जो कशीदगी जितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है सियासी जमातों के अंदर, इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि अगर कोई डेडलॉक पैदा होता है तो ये ना हो कि जमहूरियत ही टिके हो जाए। आपका एक पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बड़ा पॉजिटिव हो रहा है हमेशा से, तो ऐसे मौके में इमरान खान के साथ आप हैं तो कोई मीडिएशन का तो कुछ किरदार आप अदा कर सकते हैं या इसके चांसेस हैं? उनको पता है, जो आए हैं ना ये नए तोहफे जो पेश हुए हैं, उनको पता है किसके ज़रिए से क्या बात करनी है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक आसिफ अली जरदारी की मुलाकात होती है, उसके बाद हुकूमत ये फैसला करती है कि आइनी मुद्दत हम अपनी पूरी करेंगे, क्या किसी अदारों की तरफ से इनको गारंटी दे दी गई है या फिर इनका अपना ये फैसला है? ये तो अदारे बता सकते हैं या जरदारी साहब बता सकते हैं। अच्छा, तो साहब ये फरमाइएगा कि रात एक पुलिस एहलकार शहीद भी हुआ, जो वाक़या पेश आया लाहौर में। शहीद केड़ी गल तो कोई डाकू फड़न गए सन, शहीद केड़ी गल उसको गोली लगी है, तो क्या आप समझते हैं कि जो आप किसी के घर चोर डाकू जब जाते हैं, किसी को क्या पता है कि ये चोर है, डाकू है और कौन आ रहा है, और उसकी बेटी है, उसकी बहनें हैं, बहू है, उसकी बीवी है। कोई बात करने वाले हैं, वो जब बात करेंगे तो फिर इंशाल्लाह बात जब करेंगे शुरू तो आगे बढ़ेगी। इमरान खान साहब को तो अदम एतमाद के जरिए हटाया गया ना, ये एक राइट था उस वक्त की अपोजिशन का, उन्होंने नो ट्रस्ट वोट फाइल किया, वो कामयाब हो गया, इमरान साहब चले गए, तो बजाय इसके कि वो इंतजार करते हुए 1.5 साल बाद इलेक्शन हो जाने थे, तो ये लॉन्ग मार्च करने की और इस तरह की पॉलिटिक्स की क्या जरूरत है? इसलिए ज़रूरत थी कि मुल्क बैठ रहा है, मुल्क की मईशत बैठ रही है, और ये बिल्कुल इमरान खान साहब का जो बयानिया है कि ये शायद खुदा न खास्ता ये हमारा मुल्क जो है ये बाहर से बैठ के चलाने की कोशिश की जा रही है, उसकी नेगेशन बड़ी ज़रूरी है। तो वो उसके साथ ये तय करना ज़रूरी है कि फौरी तौर पे कौमी सतह पे इलेक्शन हो। ये फरमाइएगा कि आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है, ये जो पकड़ दकड़ हो रही है, इससे क्या लॉन्ग मार्च रोका जा सकता है या किस तरफ हालात जा रहे हैं? क्या आप समझते हैं हालात ख़राब कौन कर रहा है? देखें जी, ये इनके अंदर बड़ी कैपेसिटी है। जैसे जो पहला धरना हुआ था, जो जिसमें फिर माल्टाउन का जो वाक़या है अभी मैंने आपको बताया है, वहाँ जो इनकी हैंडलिंग की कारकर्दगी है, और ये राना सनाउल्लाह तो ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस, मेरे पास रिकॉर्ड मैंने इकट्ठा किया हुआ है, वो इंशाल्लाह जब अदालत लगेगी दहशत गर्दी की तो वहाँ दिया जाएगा, जिसमें उसने कहा है हाँ जी तो ये स्टेट विद इन स्टेट बन रही थी। भाई उधर जो चेक पोस्टें भरी थी वहाँ डाके पड़ रहे थे, तो शहरियों के कहने के ऊपर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर वो बने थे। अच्छा साहब, ये जो राना सनाउल्लाह का ये कह रहे हैं साहब जो है वो इस एहतजाज में, इस धरने में, इस सारे मामलात में आप अपने वर्करों को क्या हुक्म देते हैं? उनको हुक्म दे दिया गया है, जो ही खान साहब की कॉल आई है सब इंशाल्लाह वहाँ पहुँचे। अच्छा सर, ये बताइएगा, राना सनाउल्लाह ने ये कहा है, राना सनाउल्लाह ने कि ये जो लॉन्ग मार्च रोकने का और सख्ती से निबटने का फैसला किया गया है, ये तमाम, यार एक मिनट सवाल कर रहे हैं, तमाम इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लेकर किया गया है, तो उसमें तमाम इत्तेहादियों में जोधी सादिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा भी शामिल हैं, तो क्या कल को कोई इस तरह का एडवेंचर होता है, लाशें गिरती हैं, तो इन दोनों के खिलाफ भी पर्चा करवाएंगे आप? देखें जी, मेरी बात सुने, वो इस काम में है ही नहीं है दोनों, ना उनकी तबीयत में है ये है, ना उनके पार्टी के मंशूर में ये है, और ना ही पार्टी की तरफ से उन्हें कोई इजाज़त है। तो शुजा साहब पार्टी के सदर हैं, बिल्कुल सख्ती के साथ उनको मना किया गया है कि आप जाके अपना अपना काम किसी का भला कर सकते हैं तो वो करें। अच्छा जो साहब, ये फरमाइएगा, आपसे कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा है कि न्यूट्रल्स जो हैं उनको अपने ओथ का तहफ़्फ़ुज़ करना है, यानी उन्होंने एक मुतालबा किया है कि इस सारी सूरत हाल में न्यूट्रल्स को अपने ओथ को डिफेंड करना है। आप भी ये मुतालबा कर रहे हैं उनसे न्यूट्रल से कि वो अपने ओथ का तहफ़्फ़ुज़ करें? देखें जी, खान साहब ने बड़ा ही सोच समझ के ये सारा प्लान बनाया, और
उनके जो इत्तेहादी हैं उसमें हम हैं और कुछ आज़ाद लोग भी हैं, बिल्कुल ऑन बोर्ड हैं और वो जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम उनके साथ हैं। इमरान खान के जितने एक एक करके उसका साथ छोड़ गए, सिर्फ आप साथ खड़े रहे, आज आपको उस फैसले पर अफसोस नहीं है? आज हमें खुशी है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। मैंने तो शुक्राने के नफल पढ़े थे जब ये फ़ैसला हुआ था, और आप देख लें अब कौम को ये साबित हो चुका है कि हमारा जो फ़ैसला वो सही था। ये फरमाया कि आपने एक खान साहब को एक मशवरा दिया था, एक इंटरव्यू में भी आपने कहा था कि हमें फौज को टारगेट नहीं करना चाहिए, उन्हें एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट नहीं करना चाहिए। क्या खान साहब ने आपके मशवरे को माना और क्या अब दोबारा कोई ताल्लुकात की बहाली की तरफ मामला चले हैं, ताल्लुकात बहाल हुए हैं फौज के इमरान खान? जी हो रहे हैं उनके साथ, तभी तो जब वो बैठेंगे वो ज़ाहिर है वो सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर हैं इमरान खान साहब के साथ फ़ौज है और अदालतें हैं, अदलिया है, और अदलिया बिल्कुल इंसाफ मिल रहा है। खान साहब अब तारीफ़ कर रहे हैं उनकी। इलेक्शन कमीशन में देखें इंसाफ नहीं हुआ, इनके जो लोटे हैं सारे फारग हो गए 20 के 20, उनको अब सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इसी हवाले से आप अदलिया से कोई मुतालबा करेंगे कि वो आज की सूरत हाल पुलिस एहलकार की जांच हुआ? जी वो अदालत में मेरी शफकत महमूद साहब से बात हुई है, अदालत चले गए हम, PTI चले वो कर रहे हैं, बल्कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद में भी उन्होंने रिट दायर कर दिया। चौधरी साहब आप सीजन पॉलिटिशियन हैं, आप सीजन पॉलिटिशियन हैं, एक बात खुल के थोड़ा सा बता दें, चूँकि बार बार न्यूट्रल्स की भी बात होती है, अफवाज पाकिस्तान को आपका क्या मशवरा है, हुकूमत के साथ रहें या इमरान खान की तरफ हो जाएं? बस ये देखें जी, हमेशा वो पाकिस्तान के साथ रहे हैं, हमेशा उन्होंने बड़ा सब्र तहम्मुल, उन पर तनकीद भी करते हैं सियासतदान, कोई लोग तो इस हद तक भी जाते हैं जो मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, बुरा भला भी कहते हैं। उन्होंने अपना काम करना है, उनका फ़र्ज़ है पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत और पाकिस्तान की जो मुश्किलें मुसीबतें आफतें हैं, फ्लड की शक्ल में, ज़लज़ले की शक्ल में, हमेशा उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और वो ये काम करते रहेंगे, हम उनका भरपूर साथ देते हैं। पंजाब हुकूमत ने कंटेनर्स लगा दिए, तमाम पुल बंद कर दिए, फिर आप इस लॉन्ग मार्च का अंजाम आप क्या देख रहे हैं कि हुकूमत गिरेगी या लॉन्ग मार्च पे कोई पीछे हटने का इम्कान है? ये सबसे पहले तो मोटरवे बंद नहीं हो सकता और कंटेनर गिरेंगे, क्योंकि कंटेनर लगेंगे तो 7 क्रेनें भी हैं, इनके 7 क्रेनें भी हैं। क्रेनें कंटेनर को उठा के तो दरिया में फेंकेंगी या नहर में फेंकेगी तो रास्ता खुला रहेगा और सारे आपको पता नहीं है इस्लामाबाद सारा बाहर आ जाएगा, आपको पता नहीं खैबर पख्तूनख्वा से पैदल चलें तो इधर आ जाते हैं। वो जो पहाड़ियाँ हैं, शगर पहाड़ियों से निकल के एबटाबाद के लोग यहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? और कश्मीर से फिर बहुत से लोग आ रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं। ये आप देख लेंगे कि पाकिस्तान की तारीख में जितने इत्तेजाज